Good evening, everyone. Welcome back. And as you know, this is in continuation of our warm-up course, free warm-up course that's going on for PCS 2025. Or in that context, I am here again with previous year's questions on Indian polity. And today's topic of our discussion is Indian judiciary. But before we start with the previous year questions from Indian judiciary, let me give you a brief information that our new batch is going to start from 15th of Jan, that is after 2 days. And if you want to look at these free warm-up course videos and all, then you simply have to scan. The scan is already given here, wherein you'll be getting all the information and direct access to this free warm-up course for PCS 2025. So without wasting our time, let's get started with the question number 1. That is here. It appeared in PCS 2020 and question is, which of the statements given below is correct? इनमें से हमने देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. पहला है द ये पहले मैं आपको बता दूं कि ये जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में मैं इसलिए इस अटॉर्नी जनरल को टॉपिक को डाला है क्योंकि आप इसको एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ सकते हैं और इसको जुडिशरी में भी पढ़ सकते हैं. फ्रेंड्स, अटॉर्नी जनरल कैरीज द क्वालिफिकेशन ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज, इसलिए इसको हमने जुडिशरी में पर्पसली डिस्कस करने का प्रपोजल लिया. ठीक है, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट the question is, the Attorney General of India is entitled to all the privileges that are available to a member of parliament. अगर आपको मेरा पहला वीडियो याद होगा तो आपको पता होगा कि हमने उस वीडियो में भी अटॉर्नी जनरल के बारे में मैंने आपको ब्रीफली बताया था कि अटॉर्नी जनरल एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शनरी है जिसको ये पूरा प्रिविलेज है कि वो दोनों हाउसेस में बैठ सकता है, दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग्स को अटेंड कर सकता है, बट ही कैन नॉट वोट क्योंकि ही इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, राइट, और ईदर हाउस फॉर दैट मैटर. सेकेंडली, हमने ये भी बात की थी कि ही enjoys all those privileges and immunities which are available to a member of parliament. ठीक है, for that matter available to a minister also. तो यही पहली स्टेटमेंट है. The Attorney General of India is entitled to all the privileges that are available to a member of parliament. और उस वीडियो में मैंने प्रिविलेजेस भी आपको बताई थी, मेंशन की थी, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, नो अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी स्पीच मेड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, ये प्रिविलेजेस भी अटॉर्नी जनरल को मिलती हैं. तो स्टेटमेंट करेक्ट है. नंबर 2, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. आप 2020 का क्वेश्चन काफ़ी हाई कंसेप्चुअल लेवल पे पूछा गया है. अनलाइक British Attorney General, Indian Attorney General is not a member of the cabinet. Whereas in Britain, Attorney General is generally a member of the cabinet and he is appointed on political consideration. But India के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं और ना ही ऐसा कोई प्रेसिडेंट है, ना ही ऐसी कोई कन्वेंशन है जिसमें हम अटॉर्नी जनरल को कैबिनेट का पार्ट बनाते हैं. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Number 3, the Attorney General of India is appointed by the Chief Justice of India. This statement is also wrong because he is appointed by the government. He is appointed by the President. President means the government of the day. Okay? He is appointed by the President, not by the Chief Justice of India. And number 4, he must be a person who is qualified to be appointed as a judge of the High Court. This statement is also incorrect because Attorney General, मैंने आपको at the beginning बताया था, अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन है टू बी ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. मीन एनी पर्सन who is eligible to be appointed as a judge of the Supreme Court can be appointed as the Attorney General, right? Rest, it all depends upon the government of the day. ठीक है, right? कि वो Attorney General किसको अपॉइंट करना चाहते हैं और of course he or she must be an आउटस्टैंडिंग अटॉर्नी और आउटस्टैंडिंग एडवोकेट. ठीक है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को भरोसा हो कि ये हमें लीगल एडवाइस दे सकता है, अच्छी लीगल एडवाइस दे सकता है और हमें डिफेंड कर सकता है इन ए कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, राइट. सो
द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, जो पीसीएस 2020 में पूछा, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से फर्स्ट है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड टू ऑल द प्रिविलेजेस दैट आर अवेलेबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, रेस्ट ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग अबाउट द लिमिटेशंस, ये 2018 का क्वेश्चन है और उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट की एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आई थी, ठीक है, जिस जजमेंट का नाम भी आपको कभी पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली वर्सेस एनसीटी, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी जिसको हम कहते हैं, ऑफ दिल्ली, 2018 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, हेडेड बाय ऑथर्ड बाय उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा, राइट। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि ये रिसेंट इसलिए है क्योंकि 18 जुलाई 18 में ये जजमेंट आई थी अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द पावर्स ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली vis-a-vis the chief minister of Delhi has been making news. In this case, who out of the following was one of the defense counsels for Aam Aadmi Party? Because ये अरविंद केजरीवाल की सरकार है उस वक्त, थी उस वक्त और अभी भी है। डिफेंस काउंसिल का मतलब होता है जो वकील या जो एडवोकेट, ठीक है, अपोजिट पार्टी को लीड करता है कोर्ट ऑफ लॉ। इन दिस केस द अपोजिट पार्टी वाज आम आदमी पार्टी। सिंपल कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी को डिफेंड करने के लिए कौन सा वकील इनमें से हायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के इस केस में, ठीक है, राइट। तो राम जेठमलानी, पी चिदम्बरम, दुष्यंत दवे, मुकुल रोहतगी, ठीक है। मुकुल रोहतगी तो पहले ही आप समझ सकते हैं कि हो ही नहीं सकता क्योंकि उस वक्त ये अटॉर्नी जनरल था, ठीक है, ही कैन नॉट बी अ डिफेंस काउंसिल ऑफ आम आदमी पार्टी। तो आंसर वाज या आंसर इज पी चिदम्बरम, ठीक है। इन द टुडे सिनेरियो ये क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आज की डेट में ये क्वेश्चन इरेलीवेंट है क्योंकि ये अब आउटडेटेड हो गया। बट आपको ये लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली चीफ मिनिस्टर के बीच में जो टसल चलती है इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन डेफिनेटली दोबारा पूछा जा सकता है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू दिल्लीज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। उसके बारे में आपको जरूर पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, ठीक है, हाउ डज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, राइट, स्टैंड ऑन ए डिफरेंट फुटिंग, ठीक है, विज़-अ-वी द अदर यूनिट टेरिटरीज ऑफ इंडिया। कहने का मतलब यह है कि आपको ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली दूसरी यूनिट टेरिटरी से, दिल्ली यूनिट टेरिटरी है, उससे अलग कैसे है, ठीक है। एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है उसको कब बनाया गया, ठीक है। तो 1991 का जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट है उसके अंडर क्या क्या प्रोवाइडेड है, राइट। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सी है, 69th अमेंडमेंट के अंडर, ठीक है, दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का स्टेटस दिया गया, जिसके अंडर आपको ब्रीफली मैं बता दूं, जिसके अंडर ये प्रोवाइड किया गया कि दिल्ली जो है उसकी एक असेंबली होगी दिल्ली की, जिसको हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहेंगे। उसकी एक असेंबली होगी, मीन्स उसके अपने एमएलए होंगे, इलेक्टेड होंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे अभी इलेक्शन ड्यू है फरवरी में, इलेक्शंस आर गोइंग टू हेल्प फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और उसका एक लेजिस्लेचर जिसकी 70 सीट्स होंगी और उसकी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, जिसकी स्ट्रेंथ 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती। मीनिंग दैट अगर 70 एमएलए हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंडर द एक्ट या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें कितने हो सकते हैं, 10%। 10% मीन्स 7 मिनिस्टर हो सकते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एटलीस्ट अमेंडमेंट के बारे में पता होना चाहिए, 69th अमेंडमेंट, ठीक है। और उस 69th अमेंडमेंट में कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 239A, ठीक है, एंड 239AB, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और दिल्ली का जो स्टेटस है, ठीक है, विज़-अ-वी अदर यूनिट टेरिटरीज, उसके बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट टाइम दिल्ली के बारे में क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है और इट कैन बी लाइकली क्वेश्चन बिकॉज दिल्ली की हम न्यू असेंबली इलेक्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन ए मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। पीसीएस 2015 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, सिंपल, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लीगल एडवाइस टेंडर कर सकती है वेदर
ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। आपको दो चीज़ें पता होने की, क्वेश्चन ऑफ लॉ किसको कहते हैं, किसी मैटर के ऊपर कोई लीगल क्वेश्चन इन्वॉल्व है, उसके ऊपर अगर प्रेसिडेंट साहब एडवाइस लेना चाहते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, अगर कोई फैक्ट कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है एज ए फैक्ट, उसके बारे में अगर कोई लीगल जिसे कहते हैं कि लीगल व्यू लेना है, तो तब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन ए मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, ठीक है, ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, कि वो अपने आप दे देगी, ठीक है, विदाउट द प्रेसिडेंट अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट मीन गवर्नमेंट ऑफ द डे। नंबर 2, ओनली इफ ही सीक्स सच एडवाइस। Number 3, only if the matter relates to the fundamental rights of the citizen. Number 4, only if the issue poses a threat to the unity and integrity of the country. ठीक है, तो बाकी सारी चॉइसेस इनकरेक्ट हैं, only 2 is the correct answer, the correct statement, only if he seeks such advice, ठीक है। तो इसका रिलेटेड क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है इन द अपकमिंग एग्जाम कि कौन सा आर्टिकल है जिसके अंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से लीगल क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे एडवाइस ले सकते हैं या मांग सकते हैं। तो पहले आपने जाना आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, राइट। दूसरा, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो लीगल एडवाइस है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट सीक कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, इज इट बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू टेंडर सच ए लीगल एडवाइस, ठीक है। तो आंसर इज नो, it is purely discretion of the Supreme Court to give its opinion on such a matter which has been referred to it by the president, ठीक है, regarding question of law or question of fact। तो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, ठीक है, वो एडवाइस दे सकती है, नहीं दे सकती। थर्डली, इज इट इफ द सुप्रीम कोर्ट chooses to give its advice, ठीक है, is it binding on the president? तो answer is again no, it is not binding on the president, but whatever advice Supreme Court has given, it definitely will constitute a precedent, ठीक है, for the subordinate court। इन हाई कोर्ट और जितने भी, स्पेशली हम अगर सुप्रीम कोर्ट की नीचे की कोर्ट्स की बात करें, तो वो इसको एक प्रेसिडेंट कंसिडर करेंगी, ठीक है, और वो उनके ऊपर एक किस्म का ये बाइंडिंग होगा, ठीक है। बट ना ही गवर्नमेंट के ऊपर एडवाइस बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर, ना ही सुप्रीम कोर्ट बाउंड है ये एडवाइस देने के लिए, ठीक है, एक्सेप्ट उन मैटर्स में, एक और एक्सेप्शन बताता हूँ, उन मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट बाउंड है कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग एडवाइस देने के लिए जिसमें प्रेसिडेंट साहब किसी ट्रीटी जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी है उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए कोई एडवाइस मांग रहे हैं, तो ठीक है, उसमें बाउंड है सुप्रीम कोर्ट देने के लिए, अदरवाइज इट इज नॉट बाउंड टू गिव advice on a question of law or question of fact, even though president has sought it from the Supreme Court, ठीक है। Okay, moving on to next question. So in this question, तो इसका correct answer is 2, only if he seeks such advice, ठीक है। On its own initiative का मतलब होता है सुमोटो, इसका मतलब सुमोटो अपने ओन इनिशिएटिव पे सुप्रीम कोर्ट एडवाइस नहीं देगी। नेक्स्ट, which of the following places does not fall under the territorial establishment jurisdiction of Bombay High Court? PCS 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पता होगा हमारे देश में, राइट, almost every state has its own high court, but 7th constitutional amendment does provide that, ठीक है, 7th constitutional amendment ये प्रोवाइड करती है कि under the constitution 2 or more states, ठीक है, or 2 more or more states and union territories can have a common high court। कहने का मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट, ठीक है, या 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरी की कॉमन हाई कोर्ट हो सकती है, जैसे आप पंजाब और हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज प्रोवाइडेड अंडर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, ठीक है, राइट। तो मैंडेटरी नहीं है कि हर एक स्टेट की अपनी हाई कोर्ट हो, ठीक है। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो किस किस के ऊपर है। तो पहले तो आपने याद है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की एक तो गोवा के ऊपर जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, गोवा की अपनी सेपरेट हाई कोर्ट नहीं है इवन टिल डेट,
ठीक है। एक स्पेशल बेंच बैठता है गोवा में बॉम्बे हाई कोर्ट का, जो कि गोवा में जाके केसेस को सुनता है। ठीक है, तो एक आ गया गोवा। ठीक है, लक्षद्वीप पे आपने, मैं पूरा क्लैरिफाई कर देता हूँ, दमन एंड दीव बिल्कुल गलत है। दमन एंड दीव के ऊपर अहमदाबाद, दैट इज गुजरात हाई कोर्ट की, अहमदाबाद बेंच में गुजरात हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है। दादर नगर हवेली के ऊपर कलकत्ता हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, गोवा के ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट के, क्वेश्चन बॉम्बे हाई कोर्ट का है। एंड लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी के ऊपर केरला हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट द करेक्ट आंसर इज 3। ठीक है, यहाँ चॉइसेस गलत हैं, ओनली वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या लिखा है करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल, हाँ डज नॉट फॉल अंडर द टेरिटोरियल एस्टेब्लिशमेंट, इट डज नॉट, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछी है, डज नॉट फॉल अंडर द टेरिटोरियल एस्टेब्लिशमेंट जुरिसडिक्शन। तो इनमें से कौन सी फॉल नहीं करती टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में? तो आपने ये कहना है 1 2 3, 3। ठीक है, ओनली वन डज नॉट फॉल अंडर द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। तो आप ये बोलोगे इसमें 1 2 एंड 3, इसका मतलब है 1 2 एंड 4 ये फॉल नहीं करती, गोवा फॉल करती है। तो आप ये डज नॉट फॉल अंडर, तो इसमें चॉइसेस की गड़बड़ है, बट आप सिंपल इसका आंसर करेक्ट ये है कि दमन दीव दादर नगर हवेली। ठीक है, आई थिंक जस्ट अ मिनट, गोवा दमन एंड दीव दादर नगर, आई एम सॉरी सर, राइट, दमन एंड दीव एंड गोवा 1 and 3। ठीक है, I think Daman and Diu and Goa, they fall under the territorial jurisdiction of Bombay High Court. Goa, Daman and Diu, yes. ठीक है, दादरा नगर हवेली, बट आप इनको कंबाइन कर दिया है, तो दमन एंड दीव एंड गोवा, ठीक है, they fall under the territorial jurisdiction of the Bombay High Court. Next, when the office of the Chief Justice of India is vacant, or when the Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the duties of the office are performed by an acting Chief Justice. Who appoints the acting Chief Justice? ठीक है, तो simple answer is, it is the President who appoints the acting Chief Justice. ठीक है, acting Chief Justice generally तो question ये भी राइज होता है कि who can be appointed as an acting Chief Justice by the President in case the office of Chief Justice of India is vacant. तो इसका सिंपल आंसर है द सीनियर मोस्ट जज। आज की डेट में आपको पता होगा कि सीनियर मोस्ट जज कॉन्स्टिट्यूट ए कोलिजियम, ठीक है, ऑफ 5 जजेस। आई मीन देयर आर 4 सीनियर मोस्ट जजेस हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 5 जजेस का एक कोलिजियम होता है, उनमें से चीफ जस्टिस के बाद जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज होता है उसको एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जा सकता है। टुडे द सिस्टम इज डिफरेंट, दैट इज का, तो आपको कभी कभी कोलिजियम सिस्टम के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बाई, तो आपने क्या करना, बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आंसर 1, स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट, इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? ठीक है, ये क्वेश्चन अगेन जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए है कि our Supreme Court has made an ample use of this doctrine. ठीक है, बहुत से केसेस को डिसाइड करने के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने लिबरली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की डॉक्ट्रिन को यूज़ किया है केसेस डिसाइड करने के लिए, स्पेशली फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए इसको जुडिशरी में डिस्कस किया जा रहा है, अदरवाइज दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन डिस्कस्ड अंडर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इन अ सेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? पहला है द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो आपने याद रखना है 2 चीज़ें होती हैं, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है जो कि अमेरिकन कंसेप्ट है, तो आपको ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमने कहाँ लिखा है? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, आर्टिकल 21 में। दोनों के बीच में सिर्फ थिन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन है कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इट डिमांड्स ए लॉ, एक ऐसा लॉ जो कि रीजनेबल है, फेयर है और जस्ट है, आर्बिट्रेरी नहीं है। ठीक है, आर्बिट्रेरीनेस दूर करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एंड सेकेंडली, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंडर जजेस के पास स्पेशल पावर आ जाती है
किसी भी लॉ को स्क्रूटिनाइज करने की और ये डिक्लेयर करने की कि लॉ मेरे अकॉर्डिंग, जजेस के अकॉर्डिंग, जजेस की थिंकिंग के अकॉर्डिंग रीजनेबल नहीं है, ठीक है, ये आर्बिट्रेरी है, और उस बेसिस पे जज एक किस्म का लेजिस्लेशन का काम करता है. ड्यू प्रोसेस लॉ empowers the judges in fact to an extent that a judge can go to the extent of legislation, ठीक है, becoming a legislature, ठीक है. दैट्स वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है. बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आप सिंपल समझोगे, इसका मतलब यह है कि लॉ हैज टू बी जस्ट, रीजनेबल एंड नॉट आर्बिट्रेरी. इट मीन्स एनी लॉ which is provided with principles of natural justice, जिसमें नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं, उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है. तो उसी को देखते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय नो फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, नो इक्वालिटी बिफोर लॉ. द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस is very much implied under the doctrine of due process of law. ठीक है, तो दो चीजें मैंने बताई थी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. दोनों के बीच में फर्क आपको बता दिया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक तो जज को एम्पावर करती है लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है, इवन ऑन हिज ओन इमेजिनेशन, ऑन हिज ओन एस्टिमेशन कि लॉ आर्बिट्रेरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें नेचुरल जस्टिस नहीं है. सेकेंडली, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड लॉ में जज जुडिशरी इतनी पावरफुल नहीं होती, ठीक है. प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में जुडिशरी लॉ को सिर्फ उस लेंस से देखती है कि लॉ में जो यू नो व्हाट वी कॉल एज प्रोसीजर है, ठीक है, वो प्रोवाइडेड है, इवन दो प्रोसीजर माइट बी अनरीजनेबल, आर्बिट्रेरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ प्रोसीजर देखती है, ठीक है. तो दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिशमेंट. नेक्स्ट, काफी लंबा क्वेश्चन है. इट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आप पूछोगे इसमें कहीं लिखा नहीं है, ये क्वेश्चन यूपीएससी के हैं, क्योंकि इट इज हाईली लाइकली दैट UPSC has this PPSC has raised its stature or standard over the years, so it can very likely repeat the questions or incorporate the questions which have been asked in the UPSC in the previous years, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत वेकिंग करके वो क्वेश्चन आपको पूछ सकती है. तो इसलिए दो क्वेश्चन यूपीएससी के, राइट. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, the Supreme Court of India has held in some judgments that the reservation policies made under Article 164 of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. बहुत सी जजमेंट्स में, ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. जजमेंट का नाम आपको पता हो या नहीं हो, ठीक है, इसमें नागराज जजमेंट बड़ी फेमस है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये एम्फेसाइज किया था कि रिजर्वेशन 64 में जो सरकारें देती हैं वो जस्टिफाइड है, बट रिजर्वेशन तब तक जस्टिफाइड है जब तक वो एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को अफेक्ट नहीं करती, ठीक है. एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच इज लेड डाउन अंडर आर्टिकल 335, जो कि एक किस्म का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, एक किस्म का एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल कह दो, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. नंबर स्टेटमेंट 2, आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच इज वन. अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन. तो दूसरी स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म को डिफाइन करता है. दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि आर्टिकल 335 में सिर्फ ये वर्ड लिखा है कि रिजर्वेशन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ नॉट अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट डिफाइनिंग द टर्म व्हाट डज एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन. ये तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अब इन क्वेश्चन में which of the following is correct in respect of the is correct in respect of the above statement. Both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation of for statement 1 wrong, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. बी, both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. This is also incorrect because both statements are not correct, okay, and neither the statement 2 is the correct explanation. Number 3, C is statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect, okay. C is the correct answer because statement 2
is on the face of it is incorrect. Okay? तो statement 2 तो पहले ही incorrect है, तो answer is C. Right? So this is all for today. Right? We shall be coming up with another informative video that is under this free PCS warm-up course on another topic of Indian polity, right? Incorporating the questions of previous years on a different topic of Indian polity, right? In the meantime, the information is given here. The next batch is going to start from 15th of January 2020. Till then, thank you so much. Bye-bye.